शेयर बाहर निकाल लिया और मैंने सत श्री अकाल बोल दी। जैसे बैंक में अपना पैसा सेफ होता है ना, ठीक है। वैसे डीमेट अकाउंट के अंदर आपके जाके शेयर सेव हो जाते हैं। तो 100 रुपए से भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। 100 रुपए से भी? हाँ जी, हाँ जी, ठीक 100 है। रुपए से आप लॉस तो खा रहे हो 10 लाख का, जब प्रॉफिट कमाने की आपकी बारी आई तो आप सिर्फ और सिर्फ 2 लाख रुपए का या 1 लाख रुपए का आपने प्रॉफिट। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੌਪਿਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ। ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨਵੇਂ ਮਹਿਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਮਿੱਤਰ ਸੁਨੀਲ ਸਕਸੈਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਟੋਟਲ ਫੰਡਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਆ ਜੋ। ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੀ ਪਸੰਦ ਆਵੇ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿਆ ਜੋ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈਏ। ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਨੀਲ ਸਕਸੈਨਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸੁਨੀਲ ਸਕਸੈਨਾ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੇ ਆਡੀਅנס ਦਾ ਬੜੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆ ਅਰਨਿੰਗ ਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਆ ਪੈਸੇ ਦੀ। ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਸੋਹਣੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਪੈਸਾ ਹੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ, ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਸੈਸ, ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਕਸੈਸ ਵਾਸਤੇ ਮਨੁੱਖ ਬਹੁਤ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਈਜੀ ਮਨੀ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਬੜਾ ਈਜੀ ਮਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਡੀਅנס ਆ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ? ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 2004 ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਓਕੇ। ਮੈਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ ਕੋਈ 10 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿੱਥੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਰੱਖੇ ਸੀਗੇ। ਓਕੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੌਦੇ ਕਰਾਏ ਨੇ। ਓਕੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 50 100 ਕਲਾਇੰਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ, ਸਰ ਇਹ ਲੈ ਲਓ, ਸਰ ਉਹ ਲੈ ਲਓ, इसके शेयर ले लो, HDFC बैंक के शेयर ले लो, SBI के ले लो, MRF शेयर जो आज 1,36,000 रुपये घूम रहा है, उस टाइम मात्र ये कोई 700-800 रुपये की रेंज के अंदर हुआ करता। ठीक है। तो ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ, ਇਹਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਹੈ ਕੋਈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਤ ਲੱਗਿਆ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਚੱਲਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਸਰ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ। ਓਕੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖੋ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭਟਕਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਸਰਚ ਕਰੇ ਇੱਕ ਕੋਰਸਿਸ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਇੰਨੇ ਕੋਰਸਿਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਓਕੇ ਓਕੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਘੱਟ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਇੱਕ ਜੋਬ ਮਿਲੀ, ਸਾਡੇ SK ਮਿੱਤਲ ਜੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵੈਕੈਂਸੀ ਖਾਲੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋਬ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਿਆ। ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ 20 ਦੀ ਕਲਾਇੰਟ ਡੇਲੀ ਮੇਰੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਫੋਨ ਦਾ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਫੋਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਾਲਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨੀਆਂ। 2-2 ਕਾਲਾਂ, 3-3 ਕਾਲਾਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੋਲਣਾ HDFC ਲੈ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੋਲਣਾ SBI ਸ਼ੇਅਰ ਲੈ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਵਿਕਾਸ WSP ਲੈ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਲੈ ਲਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਇੰਗ ਐਂਡ ਸੈਲ ਚਾਲੂ ਕਰੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਧੀਰੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰਾਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਫਿਰ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ 5 ਮਹੀਨੇ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕੰਟੀਨਿਊ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੰਟੀਨਿਊ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਸਿੱਖ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਧੀਰੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਾ ਮੈਨੇਜਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਓਕੇ। ਉੱਥੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਰਟ ਹੋ ਗਏ। ਐਕਸਪਰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੈਨੇਜਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ BSc ਔਰ NSC ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਨੂੰ
ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੰਬੇ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਐਂਡ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ। ਓਕੇ ਓਕੇ, ਉਸ- ਮਤਲਬ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਂਜੀ, ਚੱਲਦੇ ਦੋ ਆ ਐਕਸਚੇਂਜ ਸਟਾਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਵਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬਾਈ ਐਂਡ ਸੈਲਿੰਗ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਓਕੇ ਫਿਰ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ MCX ਔਰ NCDX, ਠੀਕ ਹੈ MCX ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ भी मेटल्स हो गए, निकल, कॉपर और गोल्ड, सिल्वर, ठीक है इन मेटल्स के अंदर भी हम मतलब कि ट्रेड करवाया करते थे ओके और बहुत हाई लेवल के ट्रेड हुआ करते थे। ठीक है मेरे टाइम में गोल्ड उस टाइम हुआ करता था 18,000, ठीक है जिस टाइम मैंने ये काम सीखा था। आज गोल्ड का रेट कुछ 73,000 के लमसम है, ओके लेकिन उस टाइम 18,000 और 21,000 के बीच में गोल्ड हुआ करता था। ठीक है तो उस टाइम भी हमने उस टाइम में भी हमने 4-4 किलो सोना परचेज किया हुआ है और काफ़ी मतलब कि उस टाइम भी मैंने लोगों को 35-40 लाख रुपए प्रॉफिट करा के दिया हुआ 2004 में। ठीक है और आज उस मतलब कि उस रेशो को देखा जाए तो आज वो करोड़ों के अंदर गिने जाते हैं। ठीक है लेकिन इसके अंदर क्या है जी, बहुत हाई लेवल का रिस्क रहता है और बहुत हाई लेवल का रिस्क तो रहता है, लेकिन आपको एक पैशन भी रखना पड़ता है। अगर आपने प्रॉफिट कमाना है ठीक तो है आपको बैठना पड़ेगा सिस्टम के अंदर। ठीक है यूं नहीं कि आप लॉस तो खा रहे हो 10 लाख का, जब प्रॉफिट कमाने की आपकी बारी आई तो आप सिर्फ और सिर्फ 2 लाख रुपए का या 1 लाख रुपए का आपने प्रॉफिट कमाया। ਨਹੀਂ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਆ ਬੜੀ ਈਜ਼ੀ ਮਨੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਟਾਕ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਕ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਸਟਾਕ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਓਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਯੈਸ ਬੈਂਕ ਲੈ ਲਿਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਹਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਲੈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਹਨਾ। बिल्कुल सही कहा। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਥੱਲੇ ਆਉਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? एक्चुअल में क्या होता है, ये जितने भी यहाँ पे कस्टमर या क्लाइंट्स होते हैं ना, पूरे इंडिया में करोड़ों क्लाइंट्स हैं, वो जब सब ट्रेडिंग करते हैं, जब वो अपनी अपनी वो बिड लगाते हैं, मान लो एग्जांपल आज कोई शेयर है उसका रेट है 100 रुपये, 100 रुपये, ठीक है जी। हाँ जी। अब वो शेयर 90 रुपये आया, 90 रुपये आया तो बायर्स आ जाएंगे, ओके क्योंकि वो शेयर 90 और 110 के बीच में घूमता है। ठीक है 90 रुपये नीचे जाता है और 100 रुपये तक आ जाता है, 100 से फिर 110 चलता है। ठीक है अगर वो 110 से वापस 100 रुपये के नीचे आया है तो लोग वहाँ पे बायर आ जाएंगे, ओके बायर खरीदने के लिए आएंगे, भी नीचे आ रहा है ये वापस जाएगा। ठीक है तो वो इंट्राडे भी बायर आएंगे और कुछ डिलीवरी टाइप के भी बायर आएंगे। डिलीवरी मीन्स भी कोई लॉन्ग टर्म के खरीद के रखेंगे और कुछ इंट्राडे करते हैं। ओके तो जो इंट्राडे क्लाइंट्स करते हैं उनके लिए तो हाई रिस्क रहता है और हाई प्रॉफिट भी रहता है। ओके अब एग्जाम्पल आपने 110 रुपये वाली चीज 100 रुपये का रेट आया, हाँ जी, और आपने उसको फटाफट से 100 रुपये में बाइंग कर लिया, ठीक है आपने शेयर कर लिए 1000 बाइंग, 100 रुपये का एक शेयर का रेट था और आपने क्या किया 1000 शेयर बाइंग कर लिए। ओके अब वो 1 रुपये नीचे आएगा तो आपके पास क्वांटिटी है 1000 की, 1000 तो आपको 1 रुपये नुकसान लगेगा। अगर वो 99 आया तो आपको 1000 का नुकसान लग गया। 1000 का, तो आपने क्या करना है, भी आप क्या सोचोगे यार मैंने इसमें 3-4 हज़ार रुपये कमाने हैं, ठीक है भी मैंने अभी इसको 100 रुपये पे लिया है, 101, 102 या 103 पे निकाल दूंगा। ठीक है लेकिन होता क्या है, भी आप नीचे का SL भी लगाते हैं, ठीक है स्टॉप लॉस लगाते हैं। जैसे भी आपने लगा दिया अभी 97 का अगर डाउन में आए तो मेरा सौदा इकट्ठ हो जाए, तो 97 पे आपके 3000 मतलब कि आपका नुकसान लग जाएगा, लॉस हो जाएगा आपका। तो अब आपने वो SL लगा दिया 97 का, ठीक है एक नया कस्टमर आया, काफी नए कस्टमर आए, ठीक है जब उन्होंने देखा 97 का रेट आ गया, आपका तो स्टॉप लॉस था, आप तो गेम से बाहर हो गए, आपको तो दोबारा से नया परचेज करना पड़ेगा। ठीक है लेकिन जब जैसे जैसे रेट नीचे आता है ना तो नए नए कस्टमर और आते हैं मार्केट में, वो क्लाइंट्स क्या करते हैं, वो 97 पे परचेज करेंगे, ओके और 97 पे परचेज करने के बाद वो 95 का SL लगाएंगे। ठीक है तो ये एक सर्कल होता है, जब चीज ऊपर से नीचे आ रही होती है तो लोग बीच बीच में आते हैं और कई लोग नुकसान भुगत के वापस निकल जाते हैं। लेकिन ऑडियंस हाँ जी थोड़ी कंफ्यूज हो जाएगी। हाँ जी आप ये बताओ कि एक इंट्राडे की बात की ना आपने, हाँ जी। इंट्राडे और डिलीवरी, हाँ जी ठीक है, कई लोग ये कहते हैं कि लॉन्ग टर्म शेयर को बाय करके रखते हैं, होल्ड करके रखते हैं तो ज़्यादा बेनिफिशियली रहता है। कई लोग कहते हैं कि इंट्राडे करते हैं तो उसमें ज़्यादा बेनिफिट रहता है। ठीक है, आप ये इसके बारे में समझाओ, इंट्राडे और डिलीवरी जो होल्ड करते हैं लॉन्ग टर्म में, इसके में क्या डिफरेंस होता है? देखिए सर, डिलीवरी तो एक बहुत बेस्ट ऑप्शन होता है। ओके, अगर आप एक मिडिल फैमिली से हैं, आप 10-15 हज़ार पे सैलरी अर्न कर रहे हैं, कम से कम मतलब स्टॉक मार्केट में एंटर करना हो
तो कम से कम अपने को कितने पैसे से स्टार्ट देखिए कर सर, सकते हैं? डिपेंड करता है भी आप 100 रुपये से भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। 100 रुपये से भी? हाँ जी, हाँ जी, ठीक 100 है। रुपये से भी कर सकते हैं। ओके। और उसके लिए क्या है भी आपको कोई 20-30 रुपये का शेयर है तो आप वो बाइंग कर सकते हैं। ओके। लेकिन उसमें 100 रुपये में आपको नुकसान क्या रहेगा अभी, जैसे आजकल जो कंपनियां एप्लीकेशन दे रही हैं उसमें पर ट्रेड के ऊपर 20 रुपये लगते हैं आपके भी एक टैक्स लगता है? हाँ, मतलब ब्रोकरेज लगती है, दलाली। ओके। वो दलाली लेते हैं अपना। हाँ जी। तो जब आप खरीदते हो तब 20 रुपये लगने हैं, जब आप सेल करोगे तब 20 रुपये लगने हैं। ओके। तो अगर आप 100 रुपये इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, अगर वो आप डिलीवरी बेस करते हो फिर तो आपकी डिलीवरी फ्री है, उस पर कोई चार्ज नहीं है। ठीक है। अगर आप इंट्राडे कर रहे हो 100 रुपये लगाकर, ठीक है, तो उसमें आपको क्या होगा, 20 रुपये तो आपको खरीदने पे, 20 आप ये रुपये बता दो बेचने पे। इंट्राडे और डिलीवरी में डिफरेंस क्या होता है? इंट्राडे में ये है भी कई क्लाइंट्स आते हैं हमारे पास में, हाँ जी। वो कहते हैं हमारे पास में 20,000 है। नहीं, हाँ जी। इंट्राडे का और डिलीवरी का मतलब क्या होता है? डिलीवरी का मतलब हाँ जी। ये होता है भी आज जैसे आपने कोई चीज खरीदी हम्म, और आप उसको चाहते हो भी मैं इसको आज नहीं बेचना चाहता, ठीक है, इसको मैं कल बेचूं, 2 साल बाद बेचूं, 4 साल बाद बेचूं या 10 साल बाद बेचूं, जब मर्जी बेचें। हाँ, तो डिलीवरी का जैसे वो सिस्टम आपकी होता है। डिलीवरी हो जाएगी। और डिलीवरी कहाँ जाएगी, वो आपकी डीमैट अकाउंट में जाएगी। ओके। और वो शेयर आपको T+2 का एक फंडा होता है इनका, भी आज आपने ट्रेड किया, 2 दिन के बाद में ये आपके डीमैट अकाउंट के अंदर चले जाएंगे। ओके। उसके अंदर सेव हो जाएंगे, जैसे बैंक में अपना पैसा सेव होता है ना, ठीक है। वैसे डीमैट अकाउंट के अंदर आपके जाके शेयर सेव हो जाते हैं। ओके। उसको बाद में कोई दिक्कत नहीं, जब आप बेचोगे तो वहां से निकल के वापस आ जाएंगे, जब आप खरीदोगे तो उसमें जाके सेव हो जाएंगे। सेव हो जाए। इंट्राडे बारे बताओ आप। इंट्राडे में क्या रहता है सर भी, अगर जैसे आप के पास में पैसा है, मान लो भी लाख रुपए है, ओके। और आप चाहते हो यार मैं 2-3 हजार, चाहे आपके 10,000 ही है, लेकिन है। आप चाहते हो 10 का मैं 12 बना लूं, 2,000 500 1000 डेली बना लूं, ठीक है। तो मैं मतलब कि डिलीवरी पे नहीं जाना चाहता, मैं इंट्राडे पे जाना चाहता हूँ। ओके। तो उसमें क्या होता है सर, जैसे ए ग्रुप के शेयर हैं निफ्टी के अंदर, तो ये ए ग्रुप के शेयर होते हैं, बड़े स्टैंडर्ड के शेयर होते हैं। ठीक है। इसमें जो लिक्विडिटी होती है बहुत ज्यादा हाई होती है, ओके। ऊपर नीचे होता है, जो टर्नओवर होता है, वॉल्यूम होता है इसके अंदर, ठीक है। वो बहुत हाई होता है। तो हाई जब वॉल्यूम होगा उसके अंदर रेट बहुत ऊपर जाएंगे और रेट नीचे आएंगे। ठीक है। तो लोग क्या करते हैं उसमें, जैसे एग्जांपल अभी कोई चीज 100 रुपए की है, ठीक है। आपने 100 रुपए पे अपनी अमाउंट इन्वेस्ट कर दी 10,000 रुपए। हाँ जी। 100 रुपए में आपको 1,000 शेयर आए, ठीक है। भी आपने 10 के 10 लगा दिए, 100 रुपए के हिसाब से आपको 1,000 शेयर आए। जैसे शेयर का रेट गया 105 रुपए, ठीक है। आपने उसको फटाक से बेच दिया, आपको कितने बने, 500 रुपए। 500 बने। कंपनी दलाली कितनी लेगी, 20 रुपए खरीदने पे, 20 रुपए बेचने पे, 40 रुपए कंपनी दलाली लेगी, आपको बचे 460 रुपए। ठीक है। तो ये होता है सर इंट्राडे का फंडा। अब इसमें इंट्राडे में कई कस्टमर क्या करते हैं भी, एक 2 शेयर लेते हैं, लेकिन मेरा कहने का मतलब है जब आप इंट्राडे कर रहे हो ना, हाँ जी, तो इंट्राडे में आप क्वांटिटी थोड़ी सी ज्यादा लो। ज्यादा का मतलब जैसे आपने 1000 ली, 2000 लो, लेकिन आप उसको, जैसे आपने 1000 शेयर लिए, आपने उसको 3 रुपए पे काट दिया, 100 पे लिया, 103 पे काटा, 300 बने। कंपनी 40 रुपए लेगी एग्जाम्पल, अगर छोटा इन्वेस्टर है। हाँ जी। तो ये अगर आप दिन में 4-5 ट्रेड करके शाम को अगर आपने 10 लगाए थे, 10 के आपके 1200 रुपए भी बन गए एक्स्ट्रा, ठीक है। तो आपका बैलेंस हो गया 11,200 रुपए। ठीक है। अगर आपने 4 सौदे घुमा लिए, तो आपने पर डे 1,000-1,200 रुपए बना लिए। उससे क्या है सर, आपका जो बैलेंस है वो भी सेट होने लगेगा। कभी कभार आपको नुकसान भी लग जाएगा, जरूरी नहीं हर बार ही आपको नुकसान लगे। भी आप थोड़ा खाओगे तो आपको अच्छा प्रॉफिट होगा। अगर आप लंबा सोचोगे तो सर ये एक सबसे, मैं आपको एक बहुत बढ़िया बात बता रहा हूँ, ये है ना समुंदर है, पैसों का समुंदर। इसके अंदर अगर आप सोचोगे कि मैं बाल्टियां भर भर के फटाफट अपना, अगर कोई स्टॉक मार्केट के अंदर एंटर करना चाहता है, तो उसके लिए उसको उस चीज की कोई ट्रेनिंग लेनी जरूरी है, या मतलब सीधा ही इसके अंदर आ सकता है, उसमें लॉस तो नहीं ज़्यादा पड़ेगा, या उसको टाइम का कोई टाइम टेबल होना चाहिए, इसके लिए खुला टाइम चाहिए, या एक्स्ट्रा टाइम में आदमी कर सकता है, इसके लिए कैसे पूरा फुल टाइम देना पड़ता है इसके ऊपर, या मतलब थोड़े टाइम में भी हो जाता है ये? देखिए सर, अगर आप डिलीवरी बेस हैं, आपकी सोच लॉन्ग टर्म है, ठीक है, अब आप मंथली 20-25 हज़ार रुपये कमा रहे हैं, आज मिडिल फैमिली का 20-25 हज़ार रुपये कमा रहा होता है, ठीक है, और उसके अंदर क्या रहता है भी आप डेली मोबाइल देख नहीं सकते, ठीक है, हाँ, 9:15 मार्केट चलती है, 3:30 बजे क्लोज हो जाती है, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन आप वर्क कर रहे हैं, वर्क में देख नहीं सकते। हाँ, 9 से 5 की ड्यूटी होती है, 9 से 5 की आजकल नॉर्मल ड्यूटी चलती है, हाँ, तो उसमें आप सिर्फ बिड लगा दीजिए। मान लो कोई शेयर 100 रुपए का रेट है, और आप उसकी 95-97 रुपए मोबाइल में बिड लगा सकते हैं। अगर इसका 95 रुपए का भाव आया तो ये मेरे अकाउंट में परचेज हो जाए, तो उसमें अगर मान लो अभी 100 रुपए पे चीज चल रही है और वो 95 आती है, और अगर आपकी उसमें एडवांस बिड लगी हुई है मोबाइल में या कंप्यूटर में जैसे भी लगी हुई है, तो 95 रुपए में आपके अकाउंट में वो शेयर आ जाएंगे।
और आप उसको शाम को देखते हो तो आपको वो दिखेंगे भी आपके 95 में आगे, ठीक है, 95 के हिसाब से। ओके। अगर आप उसको सेम डे बेचते हो तो बिक जाएंगे, लेकिन अगर आपने उसको बेचना है तो वो आपके डीमेट अकाउंट में 2 दिन बाद आएंगे, 2 दिन बाद सेव होंगे, उसके बाद आप सेल कर सकते हो। इंट्राडे में तो सेम डे कर सकते हो, ठीक है, लेकिन डिलीवरी में आपको 2 दिन बाद आपके अकाउंट से वो बिकेंगे। स्टॉक मार्केट के अंदर आने के लिए हर आदमी को डीमेट अकाउंट करवाना ही पड़ता है या उसके बिना भी हाँ हो जाता सर, है? ये कंपलसरी है, क्योंकि डीमैट जब अकाउंट। डीमेट अकाउंट इसलिए कंपलसरी है क्योंकि मेरी राय में तो ये है भी जिस अकाउंट का आप ट्रेडिंग अकाउंट खुलाते हो, ट्रेडिंग का मीन्स ये हुआ भी आपके पास में जो शेयरों को खरीदा बेची करनी है वो ट्रेडिंग अकाउंट में होती है। जहाँ शेयर सेव होते हैं वो डीमेट अकाउंट में सेव होते हैं। डीमेट तो अकाउंट दोनों कंपलसरी है, डीमेट अकाउंट खुलेगा और ट्रेडिंग अकाउंट खुलेगा दोनों। हाँ, आप सेम कंपनी खुलाइए। सेम कंपनी में क्या है, जैसे मान लो आपने एंजल ब्रोकिंग की ऐप डाउनलोड की, ठीक है, उसमें आप ट्रेडिंग अकाउंट भी खुलाइए, डीमेट भी खुलाइए, क्योंकि कल को अब जब आप शेयर सेल करेंगे तो आपके डीमेट अकाउंट से हाथों हाथ वो आके सेल हो जाएंगे। अनदर कंपनी का वो अगर डीमेट अकाउंट होगा तो उसकी कुछ फॉर्मेलिटियां होंगी, वहां से आने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए। अच्छा, कोई भी नया इन्वेस्टर आता है स्टॉक मार्केट के अंदर, हाँ जी, तो उसको हजारों लाखों शेयर चलते हैं, हाँ जी, MRF का लगा लो, नेस्टा का लगा लो, यस बैंक लगा लो, IRB लगा लो, कामधेनु लगा लो, हजारों उसके अंदर शेयर चलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो नया आदमी आ रहा है उसको क्या पता है कि कौन सा मैंने शेयर लेना है, क्या बेनिफिट रहेगा? हाँ देखिए, एक्चुअल में पहले तो अपने देखेंगे अपनी पॉकेट मनी, ओके, भी मैंने कितने वाला शेयर परचेज करना है, ठीक है। देखो, शेयर का रेट 1 रुपए से भी स्टार्ट है, हाँ जी, और 1 लाख से अबोव भी है, 1.5 2 लाख तक के शेयर पड़े हैं। MRF को देख लीजिए आप, 1,36,000 का शेयर है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है भी आपकी पॉकेट मनी कितनी है, ठीक है, क्योंकि आपको अगर डिलीवरी लेनी है तो जितने का शेयर है उतना फुल पेमेंट करनी पड़ेगी, इसमें आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। मान लो अगर 100 रुपए की चीज है तो 100 रुपए देने ही पड़ेंगे आपको। तो इसके अंदर क्या है भी जब आपको 100 रुपए पूरे देने पड़ेंगे तो अब आप सोचो कि यार मैं कौन सी कंपनी का शेयर लूं जिससे मेरे को बढ़िया बेनिफिट हो। तो इसमें सर 5-6 ग्रुप होते हैं, A, B, Z, S, T। तो जो सबसे बेस्ट ग्रुप के शेयर होते हैं, मिलते हैं वो ग्रुप आपको गूगल पे सर्च करने पड़ेंगे। ए ग्रुप के जो शेयर हैं, ठीक है, वो कौन कौन से हैं, ठीक है। तो ए ग्रुप और बी ग्रुप के जो शेयर होते हैं वो सबसे बेस्ट होते हैं। इनकी जो कंपनी जो सेबी है हमारी, हाँ जी, वो इनके ऊपर पूरा कंट्रोल होता है और इनके पास में एकदम इनका रिकॉर्ड साफ सुथरा होता है, ठीक है। इनकी स्टेटमेंट, इनके फंडामेंट सब एकदम क्लियर होते हैं। अच्छा, और मतलब कोई नया इन्वेस्टर आता है तो उसको ये नहीं पता कि कौन से शेयर खरीदने, वो गूगल पर जाएगा, वहाँ पे सर्च करेगा ए ग्रुप के शेयर, ए ग्रुप के जो शेयर है, BSE में जो ए ग्रुप के और NSE में जो ए ग्रुप के शेयर हैं, हाँ जी, उसकी लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। उसमें से जो आपको लगते हैं वैलेंटाइन, अपने मुताबिक जितना इन्वेस्ट कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग, हाँ जी, तो अपने वो वाला शेयर बाय कर सकते हैं, वो बाइंग कर सकते हैं, ओके, हाँ जी, ठीक है। और बाकी सर ऐसा है अभी कौन सा सेक्टर बढ़िया चल रहा है, जैसे कई बार बैंकिंग सेक्टर बहुत अच्छा चल रहा होता है, ठीक है, कई बार बैंकिंग सेक्टर बहुत मंदा चल रहा होता है, ठीक है, कई बार कोई ऑयल सेक्टर बढ़िया चल रहा होता है, तो कई बार मेडिसिन सेक्टर, फार्मा सेक्टर बहुत बढ़िया चल रहे होते हैं। तो वो डिपेंड करता है भी किसके पास में, कौन सी कंपनी पास में अच्छी गुडविल है, ठीक है, कौन सी कंपनी डिविडेंड दे रही है, ठीक है। मतलब कि आज अगर आप शेयर परचेज कर रहे हो ना तो उसके अंदर कंपनी आपको डिविडेंड भी देती है, ठीक है। अगर डिविडेंड का मतलब ये है भी अगर कंपनी को अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है, तो वो 3 महीने में भी आपको डिविडेंड दे सकती है, 6 महीने में भी दे सकती है। तो जो इसकी डिविडेंड डिक्लेयर करने की डेट होती है वो आपको ऑनलाइन शो हो जाती है, इस दिन ये इन्होंने डिक्लेयर करना है, ठीक है। जो मेरे फ्रेंड थे उन्होंने बताया कि जैसे मैंने 1 लाख 1.25 लाख रुपए के शेयर ले लिए, हाँ जी, हाँ जी, तो हुआ क्या, जैसे शेयर डाउन होने स्टार्ट हो गए तो उन्हीं के फ्रेंड ने बताया था उनको कि अगर शेयर डाउन होने लग जाए ना तो शेयर और खरीद लो, ठीक है। जैसे 100 रुपए वाला शेयर है, अगर 90 रुपए में आ जाता है तो 90 रुपए में और स्टॉक खरीद लो आप, ठीक है। 90 वाला 80 में आ जाता है तो और स्टॉक खरीदो, ठीक है। स्टॉक 70 आ जाता है तो और स्टॉक खरीद लो। वो उन्होंने बोला कि मैंने वो 1 लाख रुपए के जो मेरे शेयर थे ना, 1,20,000 रुपए वाले, तो मैं जैसे जैसे डाउन मैं समझ गया, मैं बताता हूँ आपको, जैसे जैसे वो डाउन रेट होता गया तो मैं क्या है स्टॉक और लेता रहा, स्टॉक लेते रहे तो वो जो शेयर था ना 100 रुपए वाला, वो स्टॉक आ गया धीरे धीरे 10 रुपए पे। तो कहता मेरा 5-5.5 लाख रुपए वहां पे लग गया। तो मेरे को बड़ी प्रॉब्लम होने लगी, तो मैं स्ट्रेस में चला गया। मैं अपने फ्रेंड को बोला कि भाई ये तो क्या हुआ, ये तो मेरे पैसे और ख़राब हो गए है ना। तो वो उन्होंने बोला कि ये तो जो शेयर है ना तेरे, इनको होल्ड कर दे। तो उन्होंने बोला कि मैंने 1.5 साल तक होल्ड कर दिए, स्ट्रेस में तो रहा, होल्ड कर दिए। तो उसके बाद में कुदरती क्या शेयरों का रेट फिर चढ़ना स्टार्ट हो गया। तो जब वो वही रेट पे 100-125 रेट पे गए तो मैंने अपने आप
शेयर बाहर निकाल लिया और मैंने सत श्री अकाल बोल दी, ठीक है। तो अब बताओ कि शेयर डाउन होने लग जाते हैं तो उनका कारण क्या होता है, क्यों होते हैं? तो उस टाइम पैसा बाहर निकाल लेना चाहिए या मतलब पैसा पड़ा रहना चाहिए? अपने को क्या पता चलेगा आगे ऊपर जाएंगे सर, या आपको नहीं याद जाएंगे? होगा अभी एक सत्यम कंपनी का शेयर था, ओके, उसके अंदर कुछ मिसहैपिंग हो गई थी, ठीक है, और वो शेयर काफ़ी स्पीड से डाउन आया था, ठीक है, लेकिन उसमें काफ़ी लोगों के करोड़ों रुपए लाखों रुपए लगे थे, ठीक है। और लोग बेचने जा रहे थे, लेकिन उसमें सेलर कैप लगी हुई थी। अच्छा जी, तो मेरे पास अगर सत्यम कंपनी के शेयर है वो मैं बेचने जा रहा हूँ, हाँ जी, तो कंप्यूटर पे डेली 4% 8% टूट रहा था शेयर वो एवरी अच्छा। डे, तो वो काफ़ी डाउन आया था। ओके। लेकिन कंपनी क्या है, बहुत अच्छी ब्रांडेड कंपनी थी, ठीक है, उसने अच्छी रिकवरी मारी और वो शेयर वापस ग्रो कर गया। ग्रो कर, ऐसे ही अभी अंडानी जी के शेयर थे, ठीक है, अंडानी इंटरप्राइजेस, अंडानी ग्रेन, ओके। अंडानी पावर। अपने बात कर रहे थे कि जैसे शेयर डाउन होने स्टार्ट हो जाते हैं तो अपने को क्या पता चलेगा ये शेयर ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा? तो उसमें आदमी कैसे होल्ड करके बैठ सकता है? सर एक्चुअल में मार्केट के अंदर अफवाहें बहुत आती हैं। ठीक है, पहले अफवाहें ये आती हैं ये शेयर ऊपर जाएंगे, ठीक है, तो लोग उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद में वो शेयर काफ़ी स्पीड से नीचे आते हैं। ठीक है, स्पीड से नीचे आने के बाद में और बायर आते हैं, ओके, वो लेने के लिए आते हैं। जैसे ही बायर उसमें इन्वेस्ट करता है, रेट और नीचे आ जाता है। ठीक है, जैसे अंडानी ग्रीन के शेयरों में हुआ था, जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, आपको ध्यान होगा पिछले दिनों में, ओके, तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद में अंडानी के अंदर एक सलाह भी आ गया था। ओके, अंडानी के जितने भी शेयर थे, अंडानी पोर्ट, अंडानी ग्रीन, अंडानी इंटरप्राइजेस और एसीसी, टोटल सब शेयर एकदम डाउन आ रहे थे। ठीक है, तो अंडानी इंटरप्राइजेस जो 4000 का शेयर था, वो 800-900 रुपये तक आ गया था अच्छा, नीचे। ठीक है, सारी मार्केट क्रैश हो गई थी उस टाइम। ओके, उस टाइम क्या हुआ, हमने भी इन्वेस्टमेंट की थी हाँ जी, और मेरे कई फ्रेंड्स ने भी इन्वेस्टमेंट की थी उस time। ठीक है, तो जो शेयर 4000 का शेयर है वो दिन प्रतिदिन डाउन आता जा रहा है, तो लोग देखो, किसी ने 2500 रुपये इन्वेस्टमेंट की होगी, ठीक डाउन है। हो रहा है ले लेते हैं। ठीक है, किसी ने 2000 रुपये भी इन्वेस्टमेंट कर दी। ठीक है, मेरे वर्ग का कोई बंदा था या कोई और एक्सपर्ट थे, उन्होंने देखा यार अंडानी है, सारा एयरपोर्ट इनके पास में है, पावर प्लांट इनके पास में है, तो ये ऊपर जाएगा। ठीक है, अंडानी एनर्जी है, सोलर प्लांट के पास इनके पास में है, तो हमने भी उसके अंदर इन्वेस्टमेंट की, ओके, अंडानी ग्रीन के अंदर भी। ठीक है, तो वो जब हमने भी इन्वेस्टमेंट की तो हमने बहुत डाउन रेट पे इन्वेस्टमेंट की। लोगों ठीक है। अंडानी ग्रीन पे लोगों ने 1500 में बिल्कुल डाउन पे इन्वेस्टमेंट की, लेकिन 1500 से भी टूट के वो 800 पे आ गया। हमने जैसे 4000 रुपए वाला शेयर है, हाँ जी, हाँ डाउन हो रहा है, तो जो नया आदमी है 4000 वाला 2500 पे आएगा, हाँ। तो वो निकालने का सोचेगा कि पैसे मैं अपने बाहर खींच लूं, उसको देखो सेल सर, कर दूं। बिल्कुल। अगर वो सेल कर देता है हाँ, तो उसको तो बहुत लॉस हो जाता है, फिर वो क्या करे? सेल कर देता है तो सर एक्चुअल में तो अगर वो सेल कर देता है तो वो नुकसान तो उसका लग जाएगा ना। ठीक है, नहीं उसको मतलब फिर उसकी ट्रेनिंग की जरूरत है या कहाँ पे जरूरत है, उसको क्या पता चलेगा ये ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा? सर इसके लिए मैं आपको आपको थोड़ा या इसके कोई कोर्स वगैरह होते हैं? हाँ, नहीं इसका कोर्स तो होता है, इसकी थोड़ी ट्रेनिंग होती है। ठीक है। आप वो नहीं, अगर जैसे आप एक्सपर्ट हो ये चीज़ों के, हाँ जी। आपने काफ़ी लंबे टाइम से कम 20-25 साल से ये आप कर रहे हो, हाँ जी, हाँ जी। जैसे आप एक्सपर्ट हो, जैसे मेरे पास मेरे क्लाइंट हैं या मतलब मेरी जानकारी में है जो भी मित्र वगैरह हैं, तो उनको कोई ऐसा नहीं मिलता है कि कोई कोर्स नहीं मिलता है, कोई सिखाने वाला नहीं है। हालांकि वो काम ये करना चाहते हैं, पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं, पार्ट टाइम में चलो कोई 2-4 घंटे मतलब फ़ोन के ऊपर लगा सकते हैं, अपने लैपटॉप के ऊपर बैठ सकते हैं, सर आजकल बट उनको कोई बताने वाला नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। जैसे आप काफ़ी लंबे टाइम से ये काम कर रहे हो, अगर कोई कोर्स मैं उनको ये आपके बारे में राय दूँ भी, उनके पास उनको अच्छी नॉलेज है ये काम की, हाँ जी, तो आप उनको करवा सकते हो, उनको बता सकते हो ये बिल्कुल चीज़ के बिल्कुल बारे सर में? करा सकते हैं इसमें। अच्छा, ये कितने टाइम में आप ट्रेंड कर सकते हो उनको? सर मैक्सिमम मैं 2 मंथ के अंदर उनको ट्रेंड कर सकता हूँ। ओके, पहले भी आपके पास कोई ऐसे मतलब हाँ, मेरे क्लाइंट पास हैं, आपके में पास कितने काम कर रहे हैं मेरे पास जो में आपसे ट्रेंड होके? बिल्कुल बिल्कुल हाँ जी। मेरे पास में कई लड़कियां थी मेरे ऑफिस के अंदर, ठीक है, जिनको मैंने बहुत बढ़िया ट्रेंड किया था। ठीक है। आज वो मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर जॉब कर रही हैं, ओके, और कई स्टूडेंट थे मेरे पास में, अच्छा। उनको मैंने ट्रेंड किया था। टेक्निकल एनालाइज, चार्ट करना, कैंडल्स कैसे नीचे ऊपर होती है, सब ट्रेंड किया है। ठीक तो है, उसमें क्या है सर, थोड़ी ट्रेनिंग तो लेनी पड़ती है। ठीक अब है, एग्जाम्पल, नया क्लाइंट आया है और वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, मान लो कोई 1000 रुपये की चीज़ है और वो नीचे आ रही है, तो वो नीचे आ रही है और वो काम पे बिजी हुआ पड़ा है अपने ऑफिस में, ठीक है, लेकिन एक स्टॉपलस होता है। ठीक है, अगर वो स्टॉपलस की बिड लगा के छोड़ता है, एग्जाम्पल आपने कोई चीज़ 1000 रुपये पे ली हुई है ठीक है, और आप कहते हो कि यार वो 900 रुपये आ जाए ना, तो 900 रुपये पे मेरा वो स्टॉक बिक जाए, ठीक है, मैं उस स्टॉक में रहना नहीं चाहता।
अगर वो 900 रुपए वाली चीज 500 आ गई तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा ना। ठीक है। तो वो क्या करेगा, स्टॉप लॉस लगाएगा, एवरीडे वो स्टॉप लॉस लगाएगा। हाँ, अगर 1000 रुपए वाली चीज ऊपर जा रही है तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, 1000 वाली चीज 1050 चलेगी, 1100 चलेगी, 1200 चलेगी। देखो पता क्या है, जो नया आदमी इन्वेस्टर है, हाँ जी, हाँ जी, जो नया आदमी स्टॉक मार्केट के अंदर आता है, सबसे बड़ी बात आपकी बातों में से ये निकल रही है कि हालांकि फंडामेंटल के बारे में अगर नई जानकारी है तो ये पंगा नहीं लेना चाहिए, मतलब थोड़ा बहुत सिखलाई होना जरूरी है ये काम। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपसे मतलब कोई कनेक्ट करता है अपनी वीडियो को देख के, तो आप मतलब उसका क्या चार्ज करोगे, कितने टाइम में उसको ट्रेंड कर दोगे? सर मेरा एक्चुअल में कोर्स है, कोर्स की फीस है, हाँ जी, वो मैं आपके डिस्क्रिप्शन नीचे डाल दूंगा। ओके। और अलग अलग कोर्सेज हैं, भी आपने टेक्निकल एनालिसिस सीखना है, भी आपने बीएससी एनएससी का सीखना है, या आपने करेंसी का सीखना है, ठीक है, या आपने एमसीएक्स का सीखना है, या फसलों पे एनसीडेक्स का सीखना है। मतलब टोटल इसके बारे में, शेयर मार्केट के बारे में आपको जानकारी है, 5 निफ्टी, बैंक निफ्टी, क्रिप्टो करेंसी के बारे में, जो भी क्रिप्टो करेंसी एक अलग मैटर है, उसका भी अपने पास पूरा पोर्टफोलियो है। ठीक है, कोई बात नहीं, अपने उसके ऊपर भी किसी दिन अपने टाइम निकालेंगे, उसके ऊपर भी एक पॉडकास्ट करेंगे, ठीक है ना। अब मतलब एक वीक के अंदर एक पॉडकास्ट जरूर किया करेंगे, ठीक है, आपके पास टाइम हो तो निकाला करो जरूर, ठीक है ना, बिल्कुल, उसके ऊपर करेंगे। अच्छा, आपके पास अगर कोई भी कोर्स करना चाहते हैं तो आपसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, मैं स्क्रीन के ऊपर आपका नंबर चला दूंगा, ठीक है, तो उसके कोई भी कॉन्टेक्ट करना चाहे तो आपसे कॉन्टेक्ट करके आपसे आपका कोर्स ले सकता है ना। बिल्कुल, ओके, थैंक यू। तो अच्छा, अब बताओ मेरे को, जैसे इंट्राडे आदमी कर रहा है, इंट्राडे के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसको मतलब पार्ट टाइम में वो कर सकता है, या मतलब थोड़ा टाइम निकाल के भी वो कर सकता है? जैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी बड़ी स्पीड में चल रही है, उसका जो टाइम होता है 9 बजे से लेके शाम के 3 साढ़े 3 बजे तक का होता है ना। देखिए सर, मैं इस पे एक बहुत बढ़िया बात कहना चाहूँगा, आपने बोल दिया मेरे को। हाँ जी। एक्चुअल में जो बैंक निफ्टी या निफ्टी की आप बात कर रहे हैं, इसके अंदर बहुत बड़े इन्वेस्टर बैठे होते हैं, ठीक है, वे अपने तो स्मॉल मिड इन्वेस्टर हैं, हाँ जी, लेकिन इसके अंदर करोड़ों रुपए लगा के इन्वेस्टर बैठे होते हैं, ठीक है, वो अपने को नहीं पता होता, ठीक है, वो क्या करते हैं सर, सुबह से लेकर शाम तक ट्रेडिंग करते हैं और लास्ट में अपना प्रॉफिट निकाल के जाते हैं। फुल टाइम जॉब करते हैं, हाँ, फुल टाइम जॉब करते हैं और मोटा प्रॉफिट निकाल के एवरीडे जाते हैं वो, ठीक है, इंट्राडे में और डिलीवरी में दोनों में मोटा प्रॉफिट निकालते हैं। लेकिन जो मीडियम इन्वेस्टर होता है उसको नहीं पता होता अभी कब मुझे निकलना है, कब मुझे इंट्राडे में जाना है, कब वापस निकलना है। उसका एक टाइमिंग होता है भी, आपको जो भी कोई नया कस्टमर है उसको कम से कम भी 8 मौके डेली के मिलते हैं पैसा कमाने के, ठीक है, भी सुबह वो सुबह 9 बैठेगा, उसको कम से कम 8 मौके मिलेंगे पैसा कमाने के, ठीक है, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट भी कमाएगा तो शाम को अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। इंट्राडे करना है तो उसके ऊपर पूरा टाइम देना पड़ेगा, पूरा टाइम देना पड़ेगा, ऐसे नहीं बीच में सेट हो जाएंगे तो फिर ओके। अगर आप उसमें इंट्राडे में फुल टाइम नहीं देते हो तो आप उनके ट्रैक में फंस जाओगे और कहीं ना कहीं आपको नुकसान हो जाएगा, ठीक है। और एक टाइमिंग बहुत बढ़िया है, 9:15 मार्केट खुलती है, आप 2:30 बजे तक अपनी पोजीशनें सब क्लियर कर लो, ओके, जितना प्रॉफिट आपने कमा लिया, क्योंकि 2:30 बजे के बाद में क्या होता है भी 3:30 बजे मार्केट के अंदर जो पोजीशनें खड़ी होती है इंट्राडे में, वो कटिंग करने का टाइम हो जाता है, ओके। तो उसमें क्या होता है भी, अगर किसी लोगों ने बाइंग ज्यादा कर रखी है तो उनको सेल करने पड़ेंगे, सेल जिन्होंने कर रखा है उनको बाइंग करना पड़ेगा, तो इक्वल पोजीशन करनी पड़ेगी इंट्राडे वालों को, ठीक है। तो उसके अंदर कहीं ना कहीं जो कस्टमर होता है वो ट्रैक हो जाता है और उसमें उसको नुकसान हो जाता है, ठीक है। तो 2:30 बजे से पहले अपनी पोजीशनें सब क्लियर कर लीजिए, ठीक है। हाँ, कई लोग करते हैं 3:30 बजे तक करते हैं, लेकिन उसमें नुकसान रहता है। कोई नया इन्वेस्टर आता है, हाँ जी, तो कहने का मतलब है उसको इंट्राडे वाले साइड नहीं जाना चाहिए, उसको डिलीवरी में जाना चाहिए। नहीं, एक्चुअल में डिलीवरी में भी जा सकता है वो, लेकिन इंट्राडे से अगर वो पैसा अर्न करता है तो वो डिलीवरी में शिफ्ट करता जाए। मान लो अगर आप डेली का 1000 रुपये अर्न कर रहे हो, 10,000 लगा रखे हैं आपने, या 20,000 लगा रखे हैं। नहीं, जो आदमी अनट्रेंड है, उसके पास टाइम की भी थोड़ी कमी है, तो साइड में ये बिजनेस करना चाहता है, वो तो डिलीवरी कर पाएगा, वो तो इंट्राडे बिल्कुल वो पॉसिबल नहीं है, डिलीवरी करेगा। और जो डिलीवरी कर रहा है उसके लिए मैं एक बहुत बढ़िया आपको बताना चाहूंगा, अगर कोई बंदा डिलीवरी कर रहा है तो वो सिर्फ डिलीवरी पे ही रखे, ठीक है। अगर वो उसने मान लो आज 5,000 रुपये लगाए, 5,000 के शेयर खरीदे, फार्मा सेक्टर के लिए, कोई बैंक सेक्टर के लिए, ठीक है, तो वो एक नियम बना ले भी मेरे को 2,000 रुपये पर मंथ निकालने ही निकालने हैं, ठीक है। तो वो 2,000 रुपये डालेगा तो उसका एक टाइप का सिप प्लान हो जाएगा, ठीक है। सिप में तो क्या होता है, कंपनी वाले इन्वेस्टमेंट करते हैं, यहाँ आपको सेल्फ इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो उसमें अगर आप 2,000 रुपये लगा रहे हो
तो वो आप शेयर खरीद रहे हो तो वो एक आपकी एवरेज बन जाएगी, ठीक है, एटीपी बन जाएगी। भी आज आपने इस रेट में खरीदे, कल उसने आपने उस रेट में खरीदे, तो ऐसे धीरे धीरे करते वो आपका फंड इकट्ठा होता जाएगा और ग्रोथ करता जाएगा। ठीक है। हाँ, तो कई लोग जैसे डिलीवरी करते हैं, डिलीवरी में इन्वेस्ट कर दिया पैसा, ओके, तो उनको क्या हैबिट ऐसे होती है कि मतलब एक मन के अंदर एक ऐसे विचार बनने लग जाते हैं कि मैं चेक करता हूँ आज उसका रेट कितना हो गया, कम हो गया, ज़्यादा हो गया, देखते रहते हैं, उनको आदत पड़ जाती है। उसके बाद में वो ऐसे फील करने लग जाते हैं कि यही काम करना स्टार्ट कर दें, डिलीवरी के अंदर स्टॉक मार्केट में ही मतलब आ जाते हैं पूरे काम लेके, है ना, काम दाम सारा छोड़ के इसी के अंदर आ जाते हैं। उसके बाद में ना नॉलेज होने के कारण थोड़ा सा मार्केट नीचे आती है तो पैसा बाहर निकाल लेते हैं, लॉस हो जाता है। फिर और कोई स्टॉक देखते हैं सस्ते वाला, उसमें चले जाते हैं, फिर वो नीचे आता है, तो ऐसे करते करते अपना जो पैसा होता है उसको खत्म कर देते हैं। इस पे मैं आपको बहुत बढ़िया नियम बताऊंगा, ये एक नियम कोई शायद तक नियम बताता होगा। ओके, इसमें करना क्या होता है कि आपके पास में 1 लाख का फंड पड़ा है एग्जाम्पल। तो आप यार इतनी डीपली बातें बता रहे हो, आप कोर्स देते हो, अगर आप ऐसे स्क्रीन के ऊपर सारी बातें बताओगे तो आपसे कोर्स कौन लेगा? नहीं, एक्चुअल में कोर्स की तो मैं तो टेक्निक बताऊंगा ना, कहाँ से रेट चलेंगे, कहाँ से टूटेंगे। हाँ, बड़ी डीपली बात करते हो ना आप। हाँ जी, कहाँ से रेट चलेगा। अब मेरे तो कि मैं तो यूएसए की मार्केट रात को 2 बजे तक देख के सोता हूँ, सिंगापुर निफ्टी होगी, यूएसए की मार्केट डाउन जोन होगी, इनको मैं रात को 2 बजे तक पूरा करके चार्ट बना के फिर सोता हूँ, चलो, और मार्केट उसके हिसाब से होती है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ भी अगर किसी बंदे पास में 1 लाख रुपए पड़े हैं, तो वो बंदा सारा फंड इकट्ठा ना लगाए। ओके, वो लगाए पहले 30,000 रुपए, एग्जाम्पल बात कर रहा हूँ, 30% पैसा लगाए। 30% में मान लो आपने कोई चीज 100 रुपए में खरीदी, उस ले ली, ओके है, 30% पैसा लगा के, उसके बाद में वो चीज आ गई भाई साहब 95 रुपीज, ठीक है, 95 आ गई, तो उसमें आपने 20,000 रुपये और इन्वेस्टमेंट कर देने हैं, ठीक है। फिर आपने थोड़ा वेट करना है। अगर रेट चला जाता है 100 से ऊपर, फिर तो आपको बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि 95 वाले का रेट ऊपर हो गया, जो 100 रुपए पे आपने लिया था वो भी ऊपर हो गया। अगर बाई चांस रेट नीचे आ रहे हैं, मान लो रेट आ गया 80 रुपए, ठीक है, जो आपका फंड पड़ा 50,000 रुपए और उसमें से आप 30,000 रुपए और लगा दीजिए, ठीक है, तो आपने 80 रुपए पे भी खरीद लिया, ठीक है। अब थोड़ा सा रेट और नीचे आ गया, एग्जाम्पल शेयर तो एक ग्रुप का था लेकिन नीचे नहीं आना चाहिए था, लेकिन फिर भी आ गया, तो मार्केट डाउनफॉल आ रहा है, पूरे वर्ल्ड में आ रहा है, तो उस हिसाब से नीचे आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपके पास में जो 20,000 रुपए लास्ट में बचे हैं वो भी आप उसमें लगा दीजिए। अब आपकी आप एटीपी बनाइए, एवरेज बनेगी, एवरेज पर ट्रेड की भी आपकी क्या है, तो आप सबको टोटल लगा के आपकी जो एवरेज बनेगी, तो आपको पता लगेगा कि मैंने एक 80 पे खरीदे, एक 95 पे खरीदे, 100 पे खरीदे। अपने को मेनली बात यह है कि ध्यान रेट के ऊपर नहीं देना है। हाँ जी, हाँ जी, मतलब स्टॉक का रेट क्या जा रहा है, अपने को ध्यान देना है कंपनी का। हाँ जी, और जो मार्केट डाउन हो रही है वर्ल्ड की हो रही है या सिर्फ अपनी कंपनी की हो रही है, उसके ऊपर जोर देना है। बिल्कुल बिल्कुल, रेट नहीं देखना है। नहीं, रेट नहीं देखना। कंपनी आपने स्टैंडर्ड की चूज करनी है, ए ग्रुप की कंपनी लेनी है, ठीक है। तो कंपनी के आपने फंडामेंटल चेक करने हैं, भी इनके पास में क्या ऑर्डर है, कितना इनके पास में क्या काम चल रहा है, कंपनी प्रॉफिट में जा रही है, डिविडेंड हर साल दे रही है, क्या सीन है, वो सब कुछ चेक करने के बाद में आपने उसमें इन्वेस्टमेंट करनी है। और ज्यादातर कंपनियां जो ए ग्रुप की कंपनियां होती हैं वो बहुत स्टैंडर्ड कंपनियां होती हैं, तो मेरी राय में आप हमेशा ए ग्रुप के और बी ग्रुप के अंदर ही आप इन्वेस्टमेंट करें, और अदरवाइज आप किसी में इन्वेस्टमेंट ना करें। ओके ओके, ठीक है। तो जितने भी ये शेयर होते हैं इनके बारे में वो पहले भी आपसे पूछा था जी, हजारों करोड़ों शेयर चल रहे हैं, अगर खोज करते हैं ना तो बहुत शेयर निकलते हैं, तो उनमें से चूज करना हो तो कैसे करें चूज? मतलब आपने बता दिया कि सर्च कर लेते हैं, ए ग्रेड के, बी ग्रेड के, मतलब वो वाले लेने चाहिए अपने को। ए ग्रेड बी ग्रेड के नहीं है तो और जैसे सस्ते शेयर होते हैं, पैसों में होते हैं, 75 पैसे में, 65 पैसे में, छोटे छोटे ग्रुप के शेयर होते हैं, तो ये वाले शेयर भी मैंने कई बार चेक किए, जैसे एंजल वन के ऊपर मैंने थोड़ा टाइम पहले एक शेयर देखा था 35 पैसे का चल रहा था, ठीक है। तो अब इस टाइम वो 3 साढ़े 3 रुपए का है, सिर्फ 1.5-2 महीने के अंदर अंदर उसका रेट चढ़ गया, है ना, जैसे 10% से मतलब डबलिंग हो गया। ये क्या होता है जो सर सेबी होती है ना, ठीक है, सेबी के पास में देखो जी सबके अकाउंट स्टेटमेंट्स और टोटल इनकी जो फीस होती है, कोई भी कंपनी आज लिस्टेड होती है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में, तो इनकी फीसें जमा करवानी पड़ती हैं, ठीक है। तो अगर इनकी कुछ अनकम्प्लीट प्रोसेस रह गया है तो सेबी इनको दूसरे ग्रुप में भी डाल सकती है, ऊपर से नीचे ग्रुप में भी डाल सकती है। अगर ये प्रॉपर काम सही ढंग से नहीं कर रहे हैं तो इनको नीचे रैंक पे भी डाल सकती है। तो जो जेड ग्रुप के शेयर होते हैं ना, ये बिल्कुल मतलब कि लो कैटेगरी के शेयर होते हैं। ये हो सकता है अभी आपने 3 रुपए में शेयर खरीदा, वो 10 पैसे का आ सकता है,
तो सेबी की उसमें कोई जिम्मेवारी नहीं है। ओके ओके वो आपके ऊपर रिस्क है। सेबी कहती है मैंने तो पहले बोला था ये जेड ग्रुप का शेयर है, इसको हम डीलिस्टेड भी कर सकते हैं। ए ग्रुप में शो नहीं कर रहा है वो। हाँ, ए ग्रुप में शो नहीं कर रहा, और हम इसको कभी भी डीलिस्टेड कर सकते हैं। अगर इन्होंने अपनी फॉर्मेलिटियां कंप्लीट नहीं की, इन्होंने कोई अकाउंट स्टेटमेंट्स कंप्लीट नहीं की, या इन्होंने जो भी सेबी ने इनसे रिक्वायरमेंट की वो ये अनकंप्लीट करते हैं, तो कंपनी कभी भी डीलिस्टेड हो सकती है, आपका पैसा पूरा बर्बाद हो सकता है। इसमें सेबी की कोई जिम्मेवारी नहीं है। जैसे गूगल पर सर्च करते हैं, हाँ जी, तो वहाँ पे जैसे कई शेयर ऐसे होते हैं, नए लॉन्च होते हैं शेयर, है ना, तो उनका नहीं पता चलता अभी लॉन्च कब शेयर होता है, कैसे होता है, उसको कैसे खोजें अपने सर? उसके लिए देखो जी, आप गूगल पे सर्च कीजिए भी कोई नया आईपीओ आ रहा है, ओके, तो आईपीओ के अंदर वो शेयर लिस्टेड होगा, शो कर जाता है। हाँ जी, वो शो कर जाता है। ठीक है ठीक है। दूसरा जो भी डिफरेंट कंपनियां हैं नई नई, वो आपको जो भी अगर वो लिस्टेड हो रही हैं, तो आजकल जो एप्लीकेशन है वो आपको नोटिफिकेशन देती है भी आज ये नई कंपनियां लॉन्च हो रही हैं, उनमें आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं होती उसमें। कई लोग बोलते हैं कि ये बहुत इजी मनी है जो शेयर मार्केट है, हाँ जी, तो मतलब फिर इस हिसाब से तो इजी मनी नहीं है, इसके ऊपर तो पूरा जोर देना पड़ता है, ये भी मेहनत वाला काम है, देखना पड़ता है आदमी को। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए सर, एक मैं आपको बात बता रहा हूँ। हाँ जी। भी आपके घर में कितना पैसा पड़ा है? ओके, हाँ जी बोलो। आप नहीं बताएंगे ना? हाँ जी। तो कोई भी अपनी तिजोरी खोल के नहीं बताता। सही है, रियल फैक्ट है। ठीक है ना जी? हाँ जी। तो मेरे पास में कितना पैसा पड़ा है, किसके पास कितना पैसा पड़ा है, कौन सी कंपनी बढ़िया है, ये सिर्फ अब आपको ही सर्च करना पड़ेगा। ठीक है। और आप जो मार्केट में अफवाहें चलती हैं टेलीग्राम पर कि सर ये ले लीजिए वो ले लीजिए, वो बिल्कुल रॉन्ग होती हैं। मेरी नज़र में वो बिल्कुल गलत है। वो क्या करती हैं कंपनियां, 50 आदमी बोलती है सर आप बाइंग कर लीजिए, ठीक है, HDFC बैंक ऊपर जाएगा, 50 कंपनी को वो बोल देंगे आज HDFC बैंक टूटेगा। तो एग्जाम्पल, वो प्लस हो गया तो 50% जो लोग थे वो पास हो गए, हाँ जी, और वो डाउन हो गया तो दूसरे फेल हो गए। दोनों में से एक पास होगा, एक फेल होगा, तो उनको तो वहां से पैसा आ जाएगा। जो पास होंगे वो उनको पे कर देंगे, जो फेल होंगे उनको पैसा पे नहीं करेंगे। ठीक है। तो इसके लिए मैं कहता हूँ भी आप खुद सर्च कीजिए, खुद टेक्निकल एनालिस्ट बनिए, आपको पता होना चाहिए कौन सा शेयर बढ़िया है, किसको ऑर्डर अच्छे मिल रहे हैं, उन्होंने को जो ऑर्डर मिले हैं कंपनी को, उन्होंने ऑर्डर पूरे कर दिए और वो कंपनी प्रॉफिट में है। अगर वो कंपनी प्रॉफिट में है और वो आगे भी बढ़िया प्रॉफिट करेगी, उसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए आप। हाँ जी। अपने जॉब कर रहे हैं या कोई किसी तरह का कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, ओके, तो अपने की इच्छा बनती है कि स्टॉक मार्केट के अंदर जाना है। हाँ जी, ठीक है। तो उसके अंदर जाते हैं तो मतलब कम से कम कितने पैसे से फिर भी शुरू कर सकते हैं अपने, कम से कम मतलब 100 200 500 नहीं, मतलब ठीक, मतलब कोई 5 10 20 हजार, लाख 2 लाख, मतलब कम से कम आप मेरा मानना है भी अगर आप कोई नया इन्वेस्टर है वो 5,000 रुपए लगाए, 5,000 से शुरू कर सकते हैं। उसमें वो फुल ट्रेंड भी हो जाएगा, बाइंग सेलिंग भी करने लग जाएगा, स्टॉप लॉस भी लगाने लग जाएगा, और वो प्रॉफिट भी कमाने लग जाएगा। और नुकसान लगेगा तो वो एसएल लगा के नुकसान लगेगा, वो फुल ट्रेंड हो जाएगा। जब वो फुल ट्रेंड हो जाएगा 5,000 रुपए में, उसके बाद में वो बड़ी इन्वेस्टमेंट कर सकता है। नुकसान 5,000 में करेगा तो बिल्कुल वो टॉलरेट भी 5,000 में वो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। 5,000 में वो फुल ट्रेंड हो जाएगा, उसके बाद में वो कभी भी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर सकता है, उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। हाँ जी। करोड़ोंपति लोग बन जाते हैं शेयर मार्केट के अंदर से, पर मेरे को जितने भी लोग मिलते हैं वो बोलते हैं सर हमने शेयर लिए थे, नीचे गिर गए, उसके बाद में बर्बाद हो गए, बाद में मैंने तो मुंह नहीं किया इधर को, मैं तो इधर को गया नहीं। क्या एक बार मतलब ऐसे इसमें थोड़े शेयर डाउन हो जाते हैं, पैसा निकाल लेता है आदमी, अगर 10 रुपए वाला शेयर 1 रुपए में रह गया, ठीक है, अगर अपने 10 रुपए वाले 100 शेयर खरीदे हुए हैं 1,000 रुपए के, है ना, 1,000 रुपए के शेयर खरीदे हुए हैं, तो वो 100 रुपए के रह जाते हैं, अपने शेयर तो उतने ही अपने पास, हाँ, क्वांटिटी वही है, क्वांटिटी अपने पास वही है, उसको पड़ा रहने दो। हाँ जी। ठीक है, उसको साल 2 साल 3 साल, जैसे आटा है, आटा महंगा होता है धीरे धीरे, ठीक है, कोई भी चीज होती है धीरे धीरे महंगी होती है। ये पंखा चल रहा है, इसने आज 1,000 रुपए का है, ठीक है, 2 साल बाद 3-4 साल बाद मतलब इसको 2,000 का हो जाएगा, 1,500 का हो जाएगा, है ना। जैसे शेयर डाउन हुए हैं अपने, ऐसा तो नहीं होता कि जो 100 रुपए के शेयर पड़े हैं वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, ऐसा होता है कई बार, या ऐसा नहीं होता है? हो जाता है, ऐसे भी हो जाता है। ऐसा है, ऐसे होल्ड करना भी मतलब ठीक नहीं है ज्यादा। एक्चुअली में क्या होता है, जब अगर मार्केट के अंदर कोई कंपनी फेल हो रही है, अच्छा, उसने अपने ऑर्डर पूरे नहीं किए या नुकसान हो गया, जैसे यस बैंक फेल हुआ था, या कंपनी बैग, मैं एग्जांपल बात कर रहा हूँ, यस बैंक फेल हुआ था, ठीक है, तो जब ऐसी हवा उड़ती है ना, तो लोग क्या है, इंडिया के अंदर सिर्फ एक हवा ही एक ऐसी चीज है जो बड़ी बड़ी मार्केटें क्रैश कर देती है। सही है। तो अगर कोई बैंक फेल हो रहा है तो वो लोग बोलेंगे यस बैंक फेल हो रहा है, फटाफट अपना पैसा निकाल लो, तो वहाँ लाइन लग जाएगी,
ठीक है। हालांकि बैंक पैसा देने को तैयार भी होगा, ठीक है। लेकिन इतनी ज्यादा बड़ी लाइन लग जाएगी कि लोग कहेंगे भी हमारी तो लाखों रुपए पड़े हैं, ठीक है। तो वो वैसे ही बदनाम हो जाएगा। ठीक है, तो फेल नहीं हुआ, अभी फेल हाँ, कर देंगे वो, बातों फेल बातों हो में। जाएगा वो, ठीक है। मतलब कि अगर वो पास भी है ना तो भी फेल हो जाएगा। जब पैसा हाँ, निकालना स्टार्ट कर हालांकि देंगे उसके सारे ऊपर लोग कंट्रोल होता है, आरबीआई का पूरा कंट्रोल होता है, लेकिन एक टाइम में तो वो हवा ऐसी उड़ती है कि लोग रोने चिल्लाने लग जाएंगे, तोड़ देंगे, सब कुछ कर देंगे। ठीक है। तो वो क्या है, चीज वापस मेंटेन होने में फिर टाइम लगता है। टाइम लगता है। हाँ, रिकवरी हो जाती है। ठीक है। अंडानी था, हिंडनबर्ग ने उसके ऊपर कितनी बड़ी रिपोर्ट दी थी। ठीक है। जो 4-4 हजार के शेयर थे वो 800 रुपए आगे थे। ग्रीन जो शेयर था वो 436 रुपए का लो लगा गया था नीचे लो ठीक में। है। तो वो जो शेयर थे उनका हमें ये तो पता था भी ये वापस बढ़ेंगे क्योंकि है। इनकी रिपोर्टें पॉजिटिव हैं। ठीक है। लेकिन एक बार अगर वो हिंडनबर्ग ने जो रिपोर्ट दी थी हम्म। उसके करके उस पूरी मार्केट क्रैश हो गई थी। वो ठीक काफी है। दिन तक क्रैश रही थी, ठीक है। जिस करके हर लोगों ने वो शेयर को बेचा। हम्म। कई लोग बैठे रहे, ठीक है। जो कई जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज थे या काफी बड़े इन्वेस्टर थे वो बैठे रहे। ठीक है। नए इन्वेस्टर आए, उन्होंने भी बाइंग की, लेकिन ओके। उनकी जब बाइंग जो उन्होंने मान लो किसी ने 1500 पे की है, हम्म। 1500 का रेट 1000 रुपए पे आ गया तो उनका भी दिल कहीं ना कहीं बिल्कुल हिल बिल्कुल। गया। हाँ, नए अब आदमी का किसी भी। ने 1000 रुपए पे इन्वेस्टमेंट की और 436 रुपए का रेट लो आ गया तो समझो भाई साहब बिल्कुल खत्म हो गया। ठीक है। लेकिन सर इस मार्केट के अंदर आपको पैशन रखना बहुत जरूरी है। ओके। जो इंसान पैशन रखता है वो कामयाब होता है। ठीक है। जिसके बाद पैशन नहीं है वो उस मार्केट के अंदर कोई काम नहीं उसका। ओके। आप सब्र से बैठो, हम्म। हर रेट आएगा, लेकिन ठीक है। टाइम लगेगा। अगर कंपनी बढ़िया है, एक ग्रुप की कंपनी है, हाँ, फिर तो बैठो। आपका रेट आएगा। ओके हाँ ओके। जी, कंपनी चेक करो सबसे हाँ पहले। जी, हाँ जी, हाँ जी। कंपनी चेक करो और मार्केट अप डाउन हो रही है उसका ध्यान रखो, है ना। बिल्कुल, मेन बिल्कुल, रेट का ना देखो मेन कि रेट रेट ऊपर हो रहा है नीचे हो रहा है, इसका कोई ज्यादा मैटर नहीं ये करता चलता है। रहता है। बड़े-बड़े जो इन्वेस्टर होते हैं वो मार्केट हिला देते ये हैं। नहीं चलेगा तो फिर ट्रेड कैसे करेंगे? बिल्कुल, रेट बिल्कुल, ऊपर बिल्कुल, नीचे नहीं बिल्कुल। जाएगा तो हाँ, ट्रेडिंग कैसे ट्रेडिंग चलेगी? कैसे होगी? कैसे होगी? लाखों करोड़ों का टर्नओवर होता है इसके अंदर, डेली करोड़ों रुपए की बाइंग होती है, सेलिंग होती है। ठीक है। तो इसके अंदर जो टर्नओवर है वो इसीलिए घूमता है। तो बड़े-बड़े जो लोग होते हैं वो उसको ऊपर लेके जाते हैं, नीचे लेके आते हैं। ठीक है। ठीक और है। जो अपने जैसे जो मिडिल क्लास के जो बंदे होते हैं, हम्म। वो इसमें से थोड़ा-थोड़ा, ठीक है। मतलब कि ये तो समुंदर है पानी का। अगर हम्म। आप सोचो भी मैं बाल्टियां भर-भर के घर भर लूं तो आप भी उसमें डूब सकते हो। ठीक है। तो ऐसा नहीं आपने है। क्या करना है, लोटा से बाल्टी भरनी है। ओके थोड़ा ओके प्रॉफिट ओके। कमाया फिर कर लिया, थोड़ा प्रॉफिट कमाया कर लिया, तो शाम तक आप अच्छा प्रॉफिट अर्न कर लेंगे। अगर मतलब आप शॉर्ट। एक दिन में सोचो भी मैं हम्म। एक दिन में बाइक ले आऊं, एक दिन में कार ले आऊं, नहीं, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करके करो, आपका सारे सपने पूरे होंगे। ठीक है। हाँ जी, हाँ। मुर्गी का सोने का अंडा मतलब एकदम नहीं निकलेगा। एकदम से ना लीजिए, डेली वाला मतलब थोड़ा धीरे थोड़ा धीरे खाइए, ठीक है। आपको कभी नुकसान नहीं लगेगा। ओके ओके जब ओके। आप पूरे पक्के ट्रेंड हो जाओ उसके बाद में आप हाई रिस्क लो। ठीक है। एक मैं आपको और चीज बताता हूँ हाँ बढ़िया। जी। लोग क्या करते हैं, एसएल लगाते हैं, एग्जाम्पल ठीक है। नुकसान। एसएल का मतलब स्टॉप लॉस और नुकसान स्टॉप लॉस। उतना। ठीक 100 है। रुपए में चीज खरीदी आपने, 95 रुपए का एसएल लगा दिया, मुझे 5 रुपए का नुकसान लग जाए कोई दिक्कत नहीं है। कई लोग क्या करते हैं, 100 रुपए की चीज खरीदी, 80 रुपए का एसएल लगा दिया, ठीक है। भी 80 रुपए तक का रेट आएगा तो मुझे नुकसान लग जाए, 20 रुपए का पर शेयर रेट लग ठीक है। जाए। ओके। लेकिन मैं कहता हूँ एसएल का विपरीत करो। विपरीत मीन्स क्या करो, भी एसएल आप प्रॉफिट में लगाओ। अगर ओके। आपने 100 रुपए की चीज खरीदी है ना हाँ जी। और रेट आ गया उसका 105 रुपए, ठीक है। तो आप उसका 103 रुपए या 104 रुपए का एसएल लगा के रखो। ठीक है। भी अगर ये वापस नीचे आता है तो मेरा 103 रुपए में सौदा कट जाए, कट जाए, सही क्योंकि है। खरीदा तो आपने 100 रुपए पे है, हाँ जी। नीचे आए तो 103 रुपए पे कट जाए, 3 रुपए प्रॉफिट में प्रॉफिट जाएगा, है। प्रॉफिट है। लेकिन वो ऊपर कोई जा रहा है, ठीक वो है। गया 106 रुपए, 110 रुपए, ठीक है। 115 रुपए, ठीक है। लेकिन आपने सौदा बेचा तो नहीं ना अभी। नहीं बचा, सही है। आप उस एसएल को बढ़ाओ, जब वो ओके। 115 रुपए जाए तो आप अपना एसएल कर दो 110 रुपए। ऊपर करो। अगर वो 120 रुपए की गया तो आप अपना एसएल कर दो 115 रुपए। ठीक है। ठीक है। अगर वो चीज चलेगी 150 रुपए ठीक है। तो आप अपना एसएल कर दो 140 रुपए। देखो कहाँ तो आप वो चीज 103 रुपए में बेच रहे थे, हाँ। आज वो चीज 150 पे की, आप अपना एसएल बढ़ा रहे हो। ओके, ओके, अगर वो ओके। बाई चांस डाउन आती है तो 140 रुपए में मेरा सौदा कट जाए। कट जाए, तो सही इस है। तरीके से प्रॉफिट मोटा लो। लोग क्या करते हैं, छोटा प्रॉफिट लेते हैं। ठीक है। छोटा ठीक है। प्रॉफिट कभी नहीं लेना चाहिए। अगर आप नुकसान बड़ा देख रहे हो तो आपको प्रॉफिट भी लंबा लेना चाहिए। ओके, तो ओके, मेरा ओके। मानना ये है भी आपको हमेशा प्रॉफिट लंबा लेना चाहिए। ठीक है। और ये तो मैं आपको छोटा एग्जांपल दे रहा हूँ। इस मार्केट के अंदर मैंने 75-75 लाख रुपए पर डे कमा के दिए हुए लोगों को। ओके, ओके, इतने बड़े बड़े ओके। इन्वेस्टर मेरे पास में हुआ करते थे हमारी कंपनी में, ठीक है। जो ठीक है। 75 लाख रुपए 50 लाख रुपए सिर्फ 1 घंटे में कमाया करते थे। ठीक है। ठीक है। हाँ जी। तो अपनी ऑडियंस को देखो, वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। ओके। अपनी ऑडियंस को आप एक लास्ट बढ़िया मैसेज क्या देना चाहते हो? शेयर मार्केट में आना किस तरीके से आना चाहिए और आने के क्या क्या फंडामेंटल होने चाहिए अपने पास अगर आते हैं तो,
और अपने माइंड को कैसे मतलब रिलैक्स करके रखना चाहिए, अगर स्टॉक मार्केट में आते हैं तो कितना सब्र रखना चाहिए, कितना पैशन रखना चाहिए, ठीक है, क्या क्या चीज़ों की जरूरत होनी चाहिए अपने को। देखिए सर, मैं आपको 2-3 चीज़ें बढ़िया बढ़िया बताऊंगा। हाँ जी। अगर कोई नया इन्वेस्टर आता है, ठीक है। अगर वो डिलीवरी बेस आता है, अगर वो डेली परचेज करता है, ओके। तो उसके लिए तो बहुत वैलिड ऑप्शन है। ठीक भी है। आप बढ़िया शेयर लीजिए और ठीक डेली है। आप उसको थोड़ा थोड़ा परचेज करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। आपकी ब्रोकरेज भी नहीं लगती स्टार्टिंग में, ठीक तो है। आप वो डिलीवरी बेस इकट्ठे करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। हाँ, अगर कोई इंट्राडे बंदा आता है, ओके। 10-20 हज़ार 50 हज़ार रुपये लगाता है वो, ठीक है। तो उसको मैं यही एक बहुत बढ़िया एक बात बताऊंगा कि वो 9:15 से लेके 2:30 बजे के बीच में ट्रेड करे। ओके। और अपनी जो पोजीशन है हम्म। वो कैरी फॉरवर्ड ना करे, ओके। सेम डे में काट के जाए। ठीक है। अगर आप फ्यूचर मार्केट में भी काम करते हो तो आप नेक्स्ट डे तक पोजीशन मत लेके जाओ, ठीक है। सेम डे में पोजीशन काटो Same काटो। day में। अगर आप कॉल पुट में भी काम करते हो, ठीक है। अगर फ्यूचर और डेरिवेटिव मार्केट के अंदर आप कॉल पुट में भी काम कर रहे हो ना, ठीक है। बैंक निफ्टी के अंदर आप काम कर रहे हो, चाहे बैंक निफ्टी की कॉल पुट में भी काम कर रहे हो, ठीक है। तो आप अपनी जो पोजीशन है सेम डे में काटो। ओके। वो इसलिए काटो क्योंकि जो अगला दिन आएगा ना, उस दिन हम्म। बहुत तगड़ी फ्लक्चुएशन होगी। ठीक है। आपके रेट बहुत नीचे जा सकते हैं, आपके रेट बहुत ऊपर जा ऊपर सकते जा सकते हैं। हैं। लेकिन अगर आपके फ्रेश पोजीशन नहीं होगी, आप मतलब आपने सारी पोजीशनें काट रखी होंगी, तो आप एवरीडे पॉजिटिव माइंड से बैठोगे और अच्छा बेनिफिट कमाओगे, प्रॉफिट कमाओगे। ठीक है। लेकिन अगर आपके पुरानी पोजीशन पड़ी है और डेली लॉस में जा रही है, तो आपका पूरा बैलेंस नील हो जाएगा। ठीक है। हाँ, तो इसलिए आप मतलब कि हर दिन पोजीशन काट के जाओ और थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट कमाओ और बढ़िया प्रॉफिट कमाओगे आप। ठीक है। हाँ, तो मेरा कहने का मतलब ये है। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, आपने बहुत बढ़िया सजेशन दिया, ठीक है ना, जो मतलब स्टॉक मार्केट के बारे में आपको काफ़ी जानकारी है। तो अपने अगले वीक फिर करेंगे ये प्रोग्राम, ठीक है। आप थोड़ा थोड़ा टाइम निकाला करो, जैसे भी निकाल सकते हो। तो अगले नेक्स्ट वीक अपने प्रोग्राम फिर करेंगे। चलो आप बता दो इसमें सेगमेंट कितने होते हैं, उसके बारे में बता दो सर 5 सेगमेंट होते हैं इसके अंदर। ओके। बीएससी, एनएससी, हाँ जी। करेंसी ठीक और है। M6 एनसीडीएक्स। ठीक है। तो इसके अंदर सभी का अलग अलग रोल है। फंड आप एक ही यूज कर सकते हो। ओके। आपके अकाउंट खुल जाएंगे पांचों के पांचों। ठीक है। आप खुलाना चाहते हो अगर बीएससी एनएससी का, ठीक वो है। खुल जाएगा। अगर आप डेरिवेटिव मार्केट का भी खुलाना चाहते हो वो खुल जाएगा। करेंसी खुलाना चाहते हो वो भी खुल जाएगा। इसको डीमेट अकाउंट बोलते हैं? नहीं, डीमेट अकाउंट तो सिर्फ आपका बीएससी एनएससी में खुलता है। ओके। उसके बाद में तो आप अगर करेंसी में कोई डीमेट अकाउंट नहीं खुलता। इसमें ठीक तो है। ऑनलाइन ट्रेडिंग होती है, डॉलर खरीद लिए, चाइनीज करेंसी खरीद ली, यूरो खरीद लिए, ओके। तो ओके। करेंसी के ऊपर काम चलता है। ठीक है। लेकिन जो आपके पास में फंड है ना, एक ही फंड से आप सभी में ट्रेडिंग कर सकते हो। ठीक है। ठीक है। मतलब बीएससी में भी कर सकते हो, एनएससी में भी कर सकते हो, करेंसी में भी कर सकते हो, ओके। एमसीएक्स में भी कर सकते हो, एनसीडीएक्स में भी कर सकते हो। ठीक है। जो एक फंड है उसी से आप सभी में ट्रेडिंग कर सकते हो। तो ये 5 सेगमेंट होते हैं जिसके ऊपर अपने पूरी ट्रेडिंग करवाते हैं, ओके। पूरी अपने उसकी जनरल नॉलेज देते हैं, टेक्निकल एनालिसिस सिखाते हैं, ठीक है। कैसे बढ़ेंगे कैसे घटेंगे, ठीक है। हर चीज के बारे में पूरी नॉलेज दी जाती कोई दिक्कत नहीं है, बेफिक्र रहो। आपको आपका नंबर है जो स्क्रीन के ऊपर चला देंगे। कोई भी ऑडियंस आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, आपसे किसी तरह का कोई कोर्स लेना है। हाँ जी, चाहते अपना हैं? 15 दिन का कोर्स रहता है। ओके। जो बीएससी एनएससी का कोर्स है वो 15 दिन का रहता है। ओके। 15 दिन के बाद में वो बंदा फुल ट्रेन हो जाता है। ओके, आपका नंबर स्क्रीन के ऊपर ये चल रहा है, ठीक है। ओके। तो आपसे कनेक्ट कर देंगे जो भी होंगे, ठीक है। हाँ जी। तो अगले नेक्स्ट वीक अपने फिर प्रोग्राम करेंगे। आप बड़ी डिटेल से समझाते हो, इसी तरीके से आप हाँ, बताया करो। नेक्स्ट टाइम अपने क्या करेंगे, एक एक टॉपिक पे बात करेंगे। आज तो अपने बीएससी एनएससी पे बात की है। हाँ जी। नेक्स्ट टॉपिक में अपने डेरिवेटिव फ्यूचर मार्केट पे बात करेंगे, फ्यूचर मार्केट। जिसमें कॉल पुट का ऑप्शन होता है। ओके। कॉल पुट के अंदर 500 रुपए वाली जो चीज है वो 5 रुपए भी आ जाती है, ओके। और 5 रुपए वाली चीज 500 रुपए भी पहुंच जाती है विद 15 मिनट के अंदर। ओके। 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 ओके, ठीक है, पूरी डिटेल से आप उस चीज़ों को, ठीक है, आपको काफ़ी जानकारी है, ठीक है ना, तो एक्सप्लेन अच्छी तरह से करते हो। नेक्स्ट वीक अपने निफ्टी, बैंक निफ्टी, कॉल पुट के ऊपर बात करेंगे। उसके ऊपर आप मतलब पूरी डिटेल दोगे, है ना? हाँ जी सर। हाँ, ओके, मैं ओके। नेक्स्ट टाइम में आपको डेरिवेटिव मार्केट फ्यूचर मार्केट के बारे में बताऊंगा, बैंक निफ्टी के बारे में बताऊंगा। बैंक निफ्टी में जो कॉल पुट होती है तेजी मंदी, उसके बारे में बताऊंगा। कॉल पुट एक ऐसी चीज है जो आपको रातों रात लखपति बना सकती है और रातों रात आपको डाउन भी लेके आ सकती है। ओके। ओके। हाँ जी, तो इसलिए नेक्स्ट टाइम में हम कॉल पुट पे बात करेंगे और बैंक निफ्टी पे बात करेंगे। सर, आप बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करते हो। तो आपने कौन-कौन सी कंपनियों में काम किया हुआ है? सर एक्चुअल में मैंने कोई 6-7 कंपनी में काम किया है। ठीक है। जो मैंने मेरा करियर स्टार्ट किया था, हाँ जी। वो मैंने के&डी सिक्योरिटी से स्टार्ट किया था। ठीक है। उसके बाद में मैं रेलिगर सिक्योरिटी में चला गया ठीक है। और वहाँ रजिस्ट्रेशन मैनेजर के रैंक पे गया था। ओके। और पहले मैं डीलर था, ट्रेडिंग करवाया करता था। उसके ठीक बाद है। फिर मैं मैनेजर रैंक पे चला गया। ठीक फिर है। फेयरवेल सिक्योरिटीज और काफ़ी मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर मैंने काम किया ठीक है। और एज ए मैनेजर काम किया। और
और काफ़ी मेरे पास अकाउंट क्लाइंट्स होते थे, सबके ट्रेड मैं ही संभालता था। तो काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट कमा के दिया है। कैच पावर आपकी बहुत हाँ, बढ़िया है मिलिट्री के मतलब मेरे पास जो में नीचे काफ़ी से ऊपर क्लाइंट गए थे हो। हाँ, और धान मंडी के काफ़ी बढ़िया क्लाइंट्स थे मेरे पास में। ठीक है। मोटा प्रॉफिट कमा के दिया मैंने उनको। ये वाले काम में कैच पावर बढ़िया है आपकी। हाँ सर, मेरे हाँ, पास नॉलेज काफी है में इसकी। मैं ये मानता हूँ भी अगर कोई बंदा इन्वेस्टमेंट करता है, हाँ जी, मोटी इन्वेस्टमेंट करता है 10-20 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करता है, तो वो अगर मेरे कहने पे चलता है तो पर डे मेरे ख्याल से हाँ जी। 20-30 हज़ार रुपए एवरीडे वो कमा सकता है। ठीक बड़ी है, बात ठीक नहीं है। है इसकी। हाँ जी। कोई दिक्कत नहीं है, ये ऑडियंस आपका प्रोग्राम देख रही है, हाँ तो जी। जुड़ेंगे आपसे, आपका नंबर स्क्रीन पे चलता है, कनेक्ट करेंगे आपसे, ठीक है? ओके तो सर। आप हमारे को थोड़ा टाइम निकाला करो, तो नेक्स्ट वीक अपने हाँ, फिर नेक्स्ट प्रोग्राम वीक करना सर है, मैं तो थोड़ा-सा आपका टाइम निकाल के वेट आऊँगा। करेंगे, ठीक है? बिल्कुल, बिल्कुल। नेक्स्ट हाँ, में मैं टाइम निकालूँगा हुँ, और बैंक निफ्टी और कॉल पुट के ऊपर मैं आपको बताऊँगा, जिसके अंदर बहुत मोटा प्रॉफिट है ओके, और उसको समझने की देर है। ठीक अगर है। आप यूएसए मार्केट और डाउन द मार्केट, फॉरेन की मार्केट को समझ सकते हो, हाँ जी, तो इंडियन मार्केट को आपको समझना बहुत आसान है। आसान हाँ, है। और वो जो वहाँ फंडा चलता है, वो उसके बाद में यहाँ अप्लाई होते हैं इंडिया में। थैंक यू। तो पहले यूएसए में अप्लाई होता है, उसके बाद में यहाँ अप्लाई होता है। तो मार्केटें सेम ही होती हैं, ठीक है, तो ठीक है। बस वो थोड़ा समझने की है, वो आपको समझ आ जाएगी तो आप मोटा प्रॉफिट कमा सकते ठीक हैं। है, ठीक है। हाँ, मतलब थोड़ा नॉलेज होने की ज़रूरी है बिल्कुल, मतलब इस बिल्कुल। काम के अंदर आने के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। अब ठीक सर ये बहुत गहराई का समुंदर है। जितना इसके अंदर जाओगे उतना आप तैरना सीखोगे। रियली, हाँ, बगैर तैरने के आप सीधा कूदोगे तो आप डूब डूब जाओगे। जाएँगे, सही हाँ, है, तो सही है, इसलिए सही आपको है। तैरना आना चाहिए। पहले छोटे लेवल से चलो, फिर हाँ। धीरे-धीरे आपके पैर बड़े लेवल पे पहुँच जाएँगे। फंडामेंटल मतलब समझ में होने ज़रूरी है इसके बिल्कुल, लिए, बिल्कुल, ठीक है बिल्कुल। ना? हाँ जी, सर। पैसा बर्बाद करने से थोड़ा उसका जो कोर्स लेना या थोड़ा समझ के चलना, तो वो बेनिफिशियली रहेगा, है ना? उससे बेनिफिट फ्यूचर सिक्योर रहेगा बिल्कुल, अपना, बिल्कुल। ठीक है ना? हाँ जी। हाँ, थैंक यू सो मच फिर मिलेंगे अगले ओके वीक, सर, ठीक थैंक है? यू सो मच।